students, we are starting with question number 6. Fixed income security का question होगा, तो always remember those rules, points which we recorded or which we discussed in the first video, students. है ना? Interest is always calculated on face value. For every transaction, calculate interest. Transaction price should be X interest. If it is come interest, make it X interest. Whenever there is sale transaction, calculate profit and loss. And the last point was, when we close the account, investment should be valued at cost price or market price, whichever is less. ये 5 points हमेशा fixed income security के लिए ध्यान रखना students. Okay, so we start with number 6. Mr. Shivam holds. The term holds indicates opening balance. Mr. Shivam holds 1000. It is question number 6. Mr. Shivam holds 1010% debentures of 100 each in TM Limited as on 1st April 2016. Students, हमको opening balance दिया है. Clearly they have said 1st April 16. So 1st April 16 they have given us opening balance. Next what they have said, at a cost of rupees 1,20,000, interest is payable half yearly on 30th September and 31st March. साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार 30th सितंबर को और एक बार 31st मार्च को. स्टूडेंट्स ध्यान रखना. Mr. Shivam holds 1010% debentures of 100 each opening balance at a cost of 1,20,000. Interest is payable half yearly on 30th September, 31st March. नेक्स्ट पैरा में एक टेबल वाइज हमको ट्रांजैक्शन दिए. 30th जून परचेज. अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डायरेक्टली गिवन फॉर द मंथ ऑफ जून. 30th जून 2016. It is a purchase transaction. मैंने शॉर्ट में PURCH purchase transaction. It's a working note students. ये टाइमलाइन जो होता है वर्किंग नोट. पहले हम अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हमेशा हम टाइमलाइन बनाते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटी. डेट या मंथ का सीक्वेंस में भी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस. ओके, नेक्स्ट जून के बाद स्टूडेंट्स इफ यू नोटिस दैट पैरा दे हैव सेड 1st अक्टूबर. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज 1st अक्टूबर में दिया है, बट जून के बाद हम डायरेक्टली 1st अक्टूबर में नहीं जा सकते. Why? Simple reason. Second line from the top. Interest is payable half yearly on 30th September and 31st March. So June के बाद July, August there is no transaction. But students 30th September clearly mentioned किया है ना. Interest is payable half yearly on 30th September and 31st March. So students 30th September 2016 is the interest transaction. ये हो गया. नेक्स्ट सितंबर के बाद देन कम्स अक्टूबर स्टूडेंट्स. नाउ 1st October 2016 अगेन इट्स अ परचेज ट्रांजैक्शन. हियर आई एम रिकॉर्डिंग 1st October 16 इट्स अ परचेज ट्रांजैक्शन. अक्टूबर के बाद नवंबर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, नॉट गिवन. देन 31st December सोल्ड 700 डिबेंचर्स. हियर आई एम रिकॉर्डिंग 31st December 16. It's a sale transaction. Students Jan में देखो कोई transaction नहीं है. Then 1st Feb 2017 again sale. December के बाद directly 1st Feb 17. It's a sale transaction. 1st Feb. Then 1st March 2017 again there is a purchase transaction. 1st March. Feb के बाद 1st March को they have given us a transaction which is a purchase transaction. Then students 31st March accounts closing date है. Next time में mention भी किया है. Books of accounts are closed on 31st March. So books of accounts close करना है कब? 31st March. So 1st March के बाद then 31st March 17 is accounts closing. Accounts closing. But students ध्यान रखना, second line of the question. Interest is payable half yearly on 30th September and 31st March. So 31st March को दो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स.
इंटरेस्ट डेट भी है जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, एंड 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोजिंग भी, CLG मैंने शॉर्ट में लिखा, अकाउंट्स क्लोजिंग भी है. ओके, अगेन सेकेंड लाइन, इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March. सो 31st March अकाउंट क्लोजिंग भी है और इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन भी है स्टूडेंट्स. ओके, सो व्हाट वी डू, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. देन टाइमलाइन पे सारे ट्रांजैक्शन वे रिकॉर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ डेट या इन द सीक्वेंस ऑफ मंथ. अप्रैल से स्टार्ट करो, फिर मई में ढूंढो कोई ट्रांजैक्शन है क्या, जून, जुलाई, अगस्त, सो एंड सो फोर्थ अप टिल 31st March. हमने सारे ट्रांजैक्शन अरेंज कर लिए. इसके बाद स्टूडेंट्स अगेन जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में, वहां पे ना ओपनिंग बैलेंस के साथ में इंटरेस्ट डेट भी था. सो मैंने टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं किया था स्टूडेंट्स, बट अभी ओपनिंग बैलेंस के साथ में कोई इंटरेस्ट डेट नहीं है, सो आई हैव टू एक्सटेंड दिस टाइमलाइन. मैं इसको रेड पेन से एक्सटेंड कर रहा हूं, डैश 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 या डॉट डॉट डॉट. व्हाट डज दिस डैश 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 इंप्लाइज? इसका सिंपल मीनिंग क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, वी वोंट रिकॉर्ड इट, वी वोंट पोस्ट इट टू द लेजर अकाउंट. ये सिर्फ ये ट्रांजैक्शन, ये डेट हमारे लिए किस काम में आएगा, सॉरी ये डेट किस काम में आएगा, दिस डेट विल बी यूटिलाइज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स. अच्छा, नाउ अप्रैल से पहले सोचने का लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था. सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th September and 31st March every year. Clearly they have said 30th September and 31st March every year. Okay, so अप्रैल से पहले कौन सा महीना होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए हम हमेशा पीछे जाते हैं ना. सो अप्रैल से पहले मार्च होता है, एंड मार्च इज द इंटरेस्ट डेट एज पर द क्वेश्चन. सो 31st March 16 को लास्ट इंटरेस्ट मिला था. ओके, सो अगेन सेकेंड लाइन क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March. सो ओपनिंग बैलेंस के साथ जब भी इंटरेस्ट डेट नहीं होगा, सो व्हाट वी डू, वी एक्सटेंड द टाइमलाइन. सो डैश 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 डैश. What does it mean? ये 31st March का ट्रांजैक्शन we won't post it to the ledger account. This 31st March will be utilized for calculation of number of months. So हमने डिसाइड कैसे किया 31st March? सेकेंड लाइन में लिखा है कंपनी साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट देती है, एक बार सितंबर में, एक बार मार्च में. सो अप्रैल से पहले देखने का, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे जा रहे हैं ना, अप्रैल से पहले देखने का लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था. अप्रैल से पहले मार्च होता है, एंड एज पर द सेकेंड लाइन 31st March इज इंटरेस्ट डेट. सो 31st March 2016 इंटरेस्ट डेट है. सो वी हैव ड्रॉन द टाइम लाइन. अकाउंट भी मैंने बना के रखा है स्टूडेंट्स, बट खाली ये डेट, पर्टिकुलर्स, WN means working note, face value, INT stands for interest, last column amount. We can write cost also, amount. Same way credit side, date, particulars, WN stands for working note, face value, interest and amount. Okay, this is books of, उसका नाम है शिवम. So at the top we'll write books of Mr. शिवम. कौन से इसने इन्वेस्टमेंट खरीदी बेची, they have said 10% debentures in TM Limited. So 10%, नेक्स्ट लाइन में 10% डिबेंचर्स इन TM लिमिटेड अकाउंट. सो इन्वेस्टर का नाम शिवम है, बुक्स ऑफ शिवम एट द टॉप मैंने लिखा, फिर 10% डिबेंचर्स इन TM लिमिटेड. सो नाउ वी स्टार्ट विद पोस्टिंग. पहला ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस. सो ओपनिंग बैलेंस एसेट अकाउंट है, डेबिट साइड पे होगा. 1 April 16 टू बैंक अकाउंट. डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर शिवम होल्ड्स 1000 डिबेंचर. ₹1000 नहीं लिखा है, 1000 का मतलब हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स. सो 1000, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, सो 1000 into 100 is 1 lakh. For every transaction calculation of interest is compulsory. अगर फेस वैल्यू लिखा है तो इंटरेस्ट भी लिखो. सो वर्किंग नोट नंबर 1, interest is on 1 April 16. ओपनिंग बैलेंस 1 April का है ना. इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, विच इज 1 लाख. सो 1 लाख.
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिबेंचर्स उन्होंने कहा है, सो 10/100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ चाहिए तो टाइम लाइन पे आ जाओ. दिस इज द ट्रांजैक्शन वी आर रिकॉर्डिंग. ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट चाहिए. सो अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मार्च में. स्टूडेंट्स ये 31 मार्च है और ये 1 अप्रैल है. 31 मार्च 16, 1 अप्रैल 16. स्टूडेंट्स इमीडिएट नेक्स्ट डे है, सो नंबर ऑफ मंथ 0 है, 0/12. दिस इज 1 अप्रैल 16. लास्ट इंटरेस्ट हमको 31 मार्च 16 को मिला था. 31 मार्च इमीडिएट नेक्स्ट डे इज 1 अप्रैल. सो नंबर ऑफ मंथ्स एक थोड़ी होगा, एक मंथ भी नहीं है स्टूडेंट्स, तो 0 मंथ्स है. सो एनीथिंग व्हेन वी मल्टीप्लाई विद 0, इंटरेस्ट विल बी निल. आप चाहे तो कर 1 लाख इंटू 10% इंटू 0/12, इंटरेस्ट विल बी निल. Okay, so interest is nil. Why nil? Because 1 April opening balance है, last interest 31 मार्च को मिला था. So 31 मार्च से 1 April एक मंथ नहीं होता है स्टूडेंट्स, एक ही दिन होता है, नेक्स्ट डे ना. ओके, सो एक दिन भी पूरा नहीं है स्टूडेंट्स. इमीडिएट नेक्स्ट डे का कैलकुलेशन, बट ये नंबर ऑफ मंथ्स लिख रहे हैं, सो नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 0, तो 0/12, सो इंटरेस्ट विल बी निल. At a cost of rupees 1,20,000, कॉस्ट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, कॉस्ट 1,20,000. ओके, बट वो एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, वी डोंट नो. वी कैन एज्यूम दैट इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस. सो हमने फेस वैल्यू लिख लिया 1000 इंटू 100. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया तो 0 आया एंड कॉस्ट इज 1,20,000. सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस ट्रांजैक्शन. ओपनिंग बैलेंस हो गया. नेक्स्ट 30th June परचेज. सो परचेज विल रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड. Purchase transaction on debit side. 30th June, investment account debit to bank account. investment asset होता है ना, so asset account debit to bank account. डिटेल्स के लिए वो पैरा देखो. परचेज 500 डिबेंचर, वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए उन्होंने कहा है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100, so it comes to 50,000 face value. For every transaction, calculation of interest is compulsory. So working note number 2, interest is on 30th June 16. students, इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे. तो फेस वैल्यू हमें पता है, यस इट इज 50,000. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% डिबेंचर, सो 10/100. नंबर ऑफ मंथ्स के लिए टाइम लाइन पे आ जाते हैं. जून का ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 30th June. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? रेड पेन से मैंने लिखा है 31 मार्च. सो 31 मार्च से 30th June. अप्रैल, मई, जून 3 महीने होंगे स्टूडेंट्स, सो 3/12. अप्रैल, मई, जून, 30th June है ना, सो 3/12. सो फेस वैल्यू 50,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो इट कम्स टू 1250. प्राइस देखो वहां पे 30th June purchase number of debentures 500 at 102 कम इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स नाउ पॉइंट नंबर 3 हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. whenever transaction price is कम इंटरेस्ट we have to make it x interest. सो कम इंटरेस्ट प्राइस पहले मैं लिखता हूं, कितना उन्होंने कहा है? 102. सो 500 डिबेंचर्स इंटू 102. So 500 into 102. If we do, it comes to 51,000. कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, अभी वर्किंग नोट नंबर 2 में फाइंड किया था. आंसर 1250 था स्टूडेंट्स. सो माइनस इंटरेस्ट 1250. So 51,000 minus 1250. So we'll get the X interest price. So whenever they give us come interest price, it cannot be posted to ledger account. We must find X interest price. कैसे find करते हैं? कम interest price 500 number of debentures at 102. So 500 into 102 51,000 minus interest. अभी working note 2 में calculate किया था. Here we recorded 1250. वो deduct करो. So we get the X interest price 49750. This is the X interest price. So students, we have completed even 30th June. 30th June भी हो गया. जून के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 30th September. इट इज अ इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन. रेड पेन से लिखा है मैंने. इंटरेस्ट इन्वेस्टर के लिए हमेशा इनकम होता है एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. सो बाय बैंक अकाउंट. जब भी हम स्पेसिफिक इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, सो वी इग्नोर फेस वैल्यू, वी इग्नोर अमाउंट. वी आर कंसर्न ओनली विद इंटरेस्ट कॉलम. ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स. ये
ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 3 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, हियर आई एम मेकिंग दैट इंटरेस्ट एज ऑन 30th September 2016। जैसे मैंने कहा था आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो इंटरेस्ट मिलेगा, सेम वे डिबेंचर्स अकाउंट में बैलेंस है तो इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स। हाउ टू डिसाइड दैट? फेस वैल्यू कॉलम देखने का। ये बुक्स ऑफ शिवम है, शिवम के पास कितने डिबेंचर्स हैं दूसरे टीएम लिमिटेड के? 2 हैं, एक 10,000 सॉरी एक 1 लाख का फेस वैल्यू है, दूसरा 50,000। सो टोटल उसके पास 1,50,000 हो गया फेस वैल्यू। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। नंबर ऑफ मंथ चाहिए, हम लोग 30th सितंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था स्टूडेंट्स? इफ वी टर्न बैक एंड विल सी, सो 31st मार्च को मिला था। सो 31st मार्च से 30th सितंबर नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करो, इट कम्स टू 6। सो 6/12, 1,50,000 into 10% into 6 divided by 12, so it comes to 7,500। जब भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, इस दिन मुझे इंटरेस्ट, शिवम को इंटरेस्ट मिलेगा तो इट्स एन इनकम, फेस वैल्यू, अमाउंट कॉलम ब्लैंक। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करने का? देखने का इन्वेस्टर के पास कितने डिबेंचर्स हैं, सिर्फ 2 हैं, दोनों का फेस वैल्यू टोटल किया मैंने 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, नंबर ऑफ मंथ्स, टाइमलाइन पे आ जाओ। 30th सितंबर से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मार्च में। सो मार्च 30th सितंबर 31st मार्च, 6 months, we get 7,500। So students, we have completed even this transaction। ये भी हो गया हमारा ट्रांजैक्शन 30th सितंबर वाला। नेक्स्ट कम्स 1st अक्टूबर, अगेन परचेज ट्रांजैक्शन है। परचेज हमेशा डेबिट साइड, एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। सो टू बैंक अकाउंट, ओके। डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं। 1st अक्टूबर परचेज 500 डिबेंचर्स। अगेन स्टूडेंट्स 500 नंबर है, रुपीज नहीं लिखा है, जस्ट 500 है, तो 500 into 100, सो फेस वैल्यू आ जाएगा हमको 50,000। वर्किंग नोट नंबर 4, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज कंपल्सरी। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट इज ऑन 1st October 16। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स? हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है ट्रांजैक्शन का? 50,000। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ वी नीड नंबर ऑफ मंथ। स्टूडेंट्स हम लोग ये ट्रांजैक्शन पे परचेज वाला 1st अक्टूबर, सो टाइम लाइन पे 1st अक्टूबर यहाँ पे। अब देखो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? जब मैं पीछे पलट के देखूंगा ना स्टूडेंट्स, तो लास्ट इंटरेस्ट डेट मेरे सामने पहले ये आएगी, मार्च नहीं आएगा, मार्च तो अभी दूर चला गया। व्हेन आई टर्न बैक, तो अक्टूबर से पहले मुझे नजदीक में सितंबर दिख रहा है ना। सो 30th सितंबर रेड पेन से मैंने लिखा, ये इंटरेस्ट डेट था, ये डेट को कंपनी ने प्रॉमिस किया था। सो 30th सितंबर से 1st अक्टूबर, स्टूडेंट्स ये 30th सितंबर है, 1st अक्टूबर मतलब इमीडिएट नेक्स्ट डे। सो ये पूरा मंथ भी नहीं हुआ तो 0/12। सो अगर कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 0 आएगा। ओके, मुझे बिगनिंग में पता है कि आंसर 0 आएगा, बट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वर्किंग स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए व्हाई इट इज 0। ओके, इंटरेस्ट इज ऑन 1st अक्टूबर, हमेशा फेस वैल्यू पे 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अभी नंबर ऑफ मंथ चाहिए ना, 1st अक्टूबर टाइम लाइन पे यहाँ पे है 1st अक्टूबर। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? पीछे पलट के देखते हैं। ओके, कंपनी ने प्रॉमिस किया था 30th सितंबर। सो 30th सितंबर से 1st अक्टूबर, 30th सितंबर से 1st अक्टूबर, एक ही दिन होता है ये। 30th सितंबर है, 1st अक्टूबर मतलब इमीडिएट नेक्स्ट डे, तो पूरा एक महीना थोड़ी हुआ, तो 0/12। सो 50,000 into 10/100 into 0/12 करेंगे तो आंसर 0 होगा। ओके, दैट इज डन। नेक्स्ट purchase 1st October, purchase 500 debentures, 97 x interest, clearly x interest है, good for us। So 500 debentures purchased into 97, it comes to 48,500, 48,500। ये वाला जो purchase था ना स्टूडेंट्स, ये 49,750 वाला, ये कम इंटरेस्ट दिया था, so we made it x interest। बट ये वाला purchase ना डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा है 97 x interest, 500 debentures purchased into 97, so it comes to 48,500। so स्टूडेंट्स हमने ये भी ट्रांजैक्शन कर लिया 1st अक्टूबर वाला भी। नेक्स्ट अक्टूबर के बाद 31st दिसंबर को ट्रांजैक्शन है सेल। सेल क्रेडिट साइड पे होता है। सो 31st December 16 बाय बैंक अकाउंट। डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं।
सोल्ड 700 डिबेंचर. स्टूडेंट 700 अगेन नंबर ऑफ डिबेंचर है, तो 700 into 100 करेंगे तो फेस वैल्यू गॉट 70,000. वर्किंग नोट नंबर 5, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज कंपल्सरी. सो मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्किंग नोट 5, इंटरेस्ट INT शॉर्ट में इज ऑन 31st December 16. इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? फेस वैल्यू. हाउ मच इज द फेस वैल्यू? 70,000. सो 70,000. 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. नंबर ऑफ मंथ चाहिए ना, टाइम लाइन पे आ जाओ. 31st December टाइम लाइन पे यहाँ पे है 31st December. ये पूरा एक ही टाइम लाइन है, मैंने नेक्स्ट पेज तक उसको बनाया. 31st December. अब देखो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, तो व्हेन वी टर्न बैक तो पता चलेगा सितंबर में मिला था. सो 30th September से 31st December काउंट करो. फुल मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी काउंट करेंगे बिकॉज दिस इज 31st. सो 30th September, 31st December मीन्स 3 months. सो 3/12. So 70,000 face value, 10% rate of interest into 3 divided by 12. It comes to 1750. अभी स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन प्राइस देखो. 31st December सोल्ड 700 डिबेंचर्स, 110 कम इंटरेस्ट. रेट जो आपको दिया है कम इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स सेम वर्किंग मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. कम इंटरेस्ट प्राइस दे हैव गिवन 110. कम इंटरेस्ट प्राइस 110. कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं? 700 into 110 करते हैं, तो 700 into 110 इट कम्स टू 77,000 माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट वापस नहीं फाइंड करना है, अभी वर्किंग नोट नंबर, इट इज अ पार्ट ऑफ सेम वर्किंग नोट. सो यहाँ पे इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 1750. सो दैट 1750 वी विल डिडक्ट. जब भी प्राइस कम इंटरेस्ट होता है तो वी मेक इट एक्स इंटरेस्ट. सो 77,000 माइनस 1750. सो इट कम्स टू 75,250. सो 75,250 इज द एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस. So come interest price 700 number of debentures into 110, 77,000 minus interest 1750, we get 75,250 as X interest selling price. Point number 4 वीडियो नंबर 1 में हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था. Whenever there is sale transaction given to us, calculation of profit loss is compulsory. We can't ignore it. So students, I am recording here. Working note number 6, no? Yeah. Working note number 6. Profit loss is on जिस दिन हमने बेचा 31st December 2016. इसका फॉर्मूला क्या है? X इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में मैंने लिखा SP, माइनस X इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस CP. सेलिंग प्राइस मुझे पता है स्टूडेंट्स, अभी तो फाइंड किया था 75,250. सो 75,250. कॉस्ट प्राइस हमको कभी नहीं देगा. वी फॉलो दिस फॉर्मूला. फेस वैल्यू FV ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में मैंने FV लिखा. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन टोटल फेस वैल्यू, राइट? डेबिट माइनस क्रेडिट multiply by cost. Again students, we write debit minus credit. Okay, face value of investment sold numerator, total face value denominator into cost. Face value of investment sold, ये investment बेचा है, उसका face value 70,000 है. So numerator में will record 70,000. अब आ जाते हैं denominator. Total face value debit total करो face value column का 1 लाख प्लस 50 प्लस 50,000. सो टोटल डेबिट करेंगे स्टूडेंट्स फेस वैल्यू का. सो इट इज 2 लाख माइनस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000. डेबिट टोटल इज 2 लाख. माइनस क्रेडिट मीन्स व्हाट? गो टू द क्रेडिट साइड फेस वैल्यू कॉलम. ये जो अभी सेल लिखा ना, करंट सेल, इसको इग्नोर करो. अबाउ दैट, प्रायर टू दैट देखो, ये 70,000 इग्नोर करो. अबाउ दैट इज देयर एनी अमाउंट इन फेस वैल्यू कॉलम? फेस वैल्यू कॉलम में कोई अमाउंट है क्या 70,000 के ऊपर? नहीं है. सो माइनस 0. सेम टेक्निक अप्लाई फॉर कॉस्ट कॉलम. पहले डेबिट को टोटल कर लेते हैं. इट इज 1,20,000 प्लस 49,750 प्लस 48,500. सो इट कम्स टू 2,18,250. टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कॉस्ट कॉलम 2,18,250 माइनस
अब आ जाओ क्रेडिट साइड कॉस्ट कॉलम। ये जो करंट सेल अभी हमने लिखा है इसको इग्नोर करो, 75250 को इग्नोर करो। उसके ऊपर देखो कोई अमाउंट है क्या? नो, सो -0। नाउ सॉल्व दिस। 70,000 न्यूमरेटर डिवाइड बाय 2 लाख into 218250. So we get cost price 76387.5. So 76388 कर देता हूं मैं स्टूडेंट्स, 87.5 है तो 88. Now 75,250 selling price minus cost price 76,388. So we get a loss हुआ शिवम को 1138 का लॉस। Expense and losses are debited to P&L. Expense and losses are debited to P&L. बट ये P&L नहीं है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, सो लॉस P&L में डेबिट होगा, सो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और कौन सा डेट लिखना है? जो डेट को आपने सेल किया, 31 दिसंबर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 6 will be recorded only in this column 1138. लॉसेस P&L में डेबिट होता है, सो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करेंगे, ऑपोजिट इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस सेल ट्रांजैक्शन, ये 31 दिसंबर के बाद 1 फेब, अगेन इट्स अ सेल ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, ओके। सो अभी ये सेल ट्रांजैक्शन है सेकेंड वाला, 1 फेब 17। सेल हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, असेट बेच रहे हो, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सो बाय बैंक। डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखो, वी आर रेफरिंग क्वेश्चन नंबर 6। 1 फेब सोल्ड 300 डिबेंचर्स, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, सो वी गेट फेस वैल्यू 30,000। वर्किंग नोट नंबर 7, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट स्टूडेंट, सो वर्किंग नोट नंबर 7, सॉरी here I am recording working note number 7. Working note number 7. Interest is on 1st Feb 17. 1st Feb 17. इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे, इसका फेस वैल्यू 30,000 है, सो 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, सो 10 अपॉन 100। नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए, सो टाइम लाइन पे आ जाओ। 1 फेब को हम सेल कर रहे हैं, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था पीछे पलट के दिखेंगे, रेड पेन से हम ढूंढेंगे 30 सितंबर, सो 30 सितंबर से 1 फेब काउंट करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, सिर्फ जैन तक काउंट करना, सो 4 मंथ्स होगा स्टूडेंट, सो 4/12। फेब काउंट मत करना बिकॉज ये 1 फेब है, सो 30 सितंबर से 1 फेब 4 मंथ्स होते हैं। सो कैलकुलेशन 30,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, सो इट कम्स टू 1000। सो हमें इंटरेस्ट आ गया 1000 रुपीज। अभी प्राइस देख लो उसका क्या लिखा है, सोल्ड 300 डिबेंचर्स 98 एक्स इंटरेस्ट, गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स, एक्स इंटरेस्ट है, सो 300 इंटू 98 डायरेक्टली कर लेंगे, 29,400। इससे पहले वाला जो सेल था ना 75250 स्टूडेंट्स, वो हमको कम इंटरेस्ट दिया था, सो कम इंटरेस्ट को ईयर वी मेड इट एक्स इंटरेस्ट, ये हमने उसको एक्स इंटरेस्ट बनाया था यहाँ पे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ओके। बट ये वाला क्लियरली उन्होंने कहा है कि 98 एक्स इंटरेस्ट, सो 300 डिबेंचर्स इंटू 98 किया, सो वी गॉट 29,400। बट अगेन जब भी सेल ट्रांजैक्शन होता है तो प्रॉफिट लॉस कंपल्सरी होता है, तो वर्किंग नोट नंबर 8, वर्किंग नोट नंबर 8, प्रॉफिट लॉस इज ऑन 1 फेब 17। अगेन स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पता है, अभी हमने लिखा स्टूडेंट्स 29,400, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 29,400, कॉस्ट प्राइस वो लोग कभी नहीं देंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू इनटू कॉस्ट। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आई विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट ये वाला बेचा है, इसका फेस वैल्यू 30,000 है, सो 30,000 फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन फेस वैल्यू का डेबिट साइड में जाओ,
पहले टोटल करो 1 लाख प्लस 50 प्लस 50,000 सो इट कम्स टू 2 लाख. डेबिट माइनस क्रेडिट. अभी माइनस क्रेडिट का मतलब क्रेडिट का टोटल नहीं करते फेस वैल्यू कॉलम का. जो करंट सेल अभी लिखा आपने, जिसका प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हो, उसको इग्नोर करो. सो इग्नोर दिस 30,000. इसके ऊपर देखो अबाउट दैट 30,000 के ऊपर कोई अमाउंट है. यस, फेस वैल्यू कॉलम में एक अमाउंट है 70,000. सो करंट सेल हम लोग इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं स्टूडेंट्स. सो इनटू -70 इनटू कॉस्ट. तो अगेन पहले कॉस्ट का टोटल करेंगे. लास्ट कॉलम 1,20,000 प्लस 49,750 प्लस 48,500. इट कम्स टू 2,18,250. लास्ट कॉलम का डेबिट टोटल किया 2,18,250. ओके, कॉस्ट मतलब ये लास्ट कॉलम. माइनस क्रेडिट मीन्स व्हाट? अभी जो सेल लिखा ना स्टूडेंट्स 29,400, इसको इग्नोर करो. अबाउट दैट कोई अमाउंट है क्या? यस, देयर आर 2 अमाउंट्स 11,308 और 75,250. सो दोनों माइनस करना है. सो 11,308 माइनस होगा और 75,250. सो डेबिट का तो मैंने टोटल किया, क्रेडिट में क्या किया? ये इग्नोर किया करंट सेल. अबाउट दैट देयर आर 2 अमाउंट, सो दोनों हमने माइनस किया यहाँ पे. अब इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी 30,000 अपॉन 2 लाख माइनस 70 करोगे तो 1,30,000 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय, अभी इसका नेट आंसर 218,250 माइनस 11,308 minus 75,250. It comes to 141,862. 30,000, 2 lakh minus 70 is 130. So 30,000 upon 1,30,000. फिर ये मैंने माइनस किया 218 माइनस दिस वी गेट 141,862. अब इसको सॉल्व करते हैं. 30,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 141,862. It comes to 32737. 32737 कॉस्ट प्राइस आया स्टूडेंट्स. ये हमने आंसर फाइंड किया 32737. सेम कॉस्ट प्राइस है रिकॉर्डेड ईयर. वापस लॉस ही आएगा स्टूडेंट्स. सेलिंग प्राइस 29,400 है, यहाँ पे लिखा है. कॉस्ट प्राइस अभी हमने लिखा फाइंड करके -32737. इट कम्स टू 3,337 स्टूडेंट्स. लॉस. ऑल लॉसेस आर डेबिटेड टू P&L. लॉस जाएगा P&L में, डेबिट होगा. P&L में डेबिट मीन्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर 8 था ये. एंड आंसर विल बी रिकॉर्डेड ओनली टू द लास्ट कॉलम. लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे होता है कॉस्ट कॉलम में. गेन होगा तो डेबिट साइड पे होगा, फिर भी कॉस्ट कॉलम में. सो लॉस या गेन अमाउंट हमेशा कॉस्ट कॉलम में ही लिखना. नथिंग इन फेस वैल्यू एंड इंटरेस्ट. एंड वर्किंग नोट नंबर इट वाज 8. सो वर्किंग नोट नंबर 8. तो स्टूडेंट्स हमने ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया. 1 मार्च इज परचेज ट्रांजैक्शन. परचेज डेबिट साइड पे होता है. 1 मार्च 2017 टू बैंक अकाउंट. ओके, डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. 1 मार्च नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे हैव सेड 200. सो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इट कम्स टू 20,000. सो फेस वैल्यू मिल गया हमें. वर्किंग नोट नंबर 9 फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इंटरेस्ट. फेस वैल्यू लिखा है तो इंटरेस्ट भी लिखो, सिंपल. ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 9 आई एम ड्रॉइंग हियर. वर्किंग नोट नंबर 9. Interest is on 1 March 17. इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स? ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इसका कितना है? 20,000. सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%. सो 10 अपॉन 100. और स्टूडेंट्स इसका नंबर ऑफ मंथ देखना है, टाइमलाइन पे आ जाओ. 1 मार्च से पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 38 सितंबर. सो 38 सितंबर से 1 मार्च. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब तक काउंट होगा बिकॉज दिस इज 1 मार्च. सो इट कम्स टू 5 मंथ्स. सो यहाँ पे लिखेंगे 5/12. सो आंसर 20,000 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12. इट कम्स टू 833. Here we get the answer 833. 20,000 into 10% into 5 divided by 12. It comes to 833.33. मैंने 833 लिखा है. ओके, प्राइस देखो वहां पे क्या लिखा है.
purchase 200 debentures 105 कम इंटरेस्ट. वी कांट रिकॉर्ड कम इंटरेस्ट प्राइस. जब भी कम इंटरेस्ट प्राइस होता है तो वी मेक इट एक्स इंटरेस्ट. सो पहला कम इंटरेस्ट प्राइस कितना उन्होंने कहा 105. 200 डिबेंचर्स है उसको 105 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 200 into 105 it comes to 21,000 कम इंटरेस्ट प्राइस. माइनस इंटरेस्ट कर लो इसमें से. वापस से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं. यहाँ पे हमने फाइंड किया था वर्किंग नोट नंबर 9 में. आंसर आया था 833. सो दैट 833 वी विल डिडक्ट फ्रॉम हियर 21,000 से. सो नेट आंसर जो होगा दैट विल बी एक्स इंटरेस्ट प्राइस. 21,000 minus 833 it comes to 20167. 20167. So we got the X interest price 20167. Okay students, यहाँ तक हो गया. Okay, so that means ये भी done. 1st March 17 भी हो गया. 31st मार्च को देखो स्टूडेंट दो ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट भी है, अकाउंट्स क्लोजिंग. ऑब्वियसली पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे. डायरेक्ट अकाउंट कैसे क्लोज कर सकते हैं? जितने ट्रांजैक्शन जब पूरे कवर हो जाएंगे उसके बाद ही तो अकाउंट क्लोज होगा ना. सो 31st मार्च को दो ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट डेट भी है और अकाउंट्स क्लोजिंग भी है. सो पहले हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं. 31st मार्च 17 बाय बैंक अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर ये 10 होगा. Whenever we discuss specific interest transaction, जैसे ये सितंबर था, देखो सितंबर का यहाँ फेस वैल्यू और अमाउंट कॉलम नील रखा. फेस वैल्यू अमाउंट कॉलम नील. कैसे सोचते हैं? अगर मेरे पास बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में बैलेंस नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. सेम वे डिबेंचर्स अकाउंट में देखो शिवम की बुक्स में उसके पास डिबेंचर्स हैं क्या है स्टूडेंट. देखो कितने थे यहाँ पे, एक 1 लाख था, एक 50 था, एक 50 था और एक 20. सो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, ये चारों का टोटल करेंगे स्टूडेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स वर्किंग नोट नंबर कितना है 10. सो आई एम रिकॉर्डिंग हियर वर्किंग नोट नंबर 10. Working note number 10. Interest is on 31st March 17. So students ध्यान रखना, टोटल 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000. सो टोटल इज 2,20,000. टोटल आएगा आपको 2,20,000. इतना उसके पास डिबेंचर्स था. बट प्लीज नोट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे हैं? 31st मार्च. 31st मार्च से पहले वो 2 मरतबा डिबेंचर्स बेच चुका है स्टूडेंट्स. सो ये डिबेंचर्स का उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो बेच चुका है. शिवम ने बेच दिया, अब किसी और के पास है. सो दैट पर्सन विल टेक इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी. ओके, हम तो शिवम के बुक से कंसर्न है ना स्टूडेंट्स. सो शिवम ने ये दोनों डिबेंचर्स बेचा है. सो यू मस्ट डिडक्ट दिस. 70 और 30 कितना होता है? 1 लाख. सो माइनस 30,000 एक बेचा उसने और एक 70,000 एक बेच दिया. ठीक है, उसके पास इतना था, ये सब खरीद के रखा था 1 लाख 50 और 20, 2,20,000. बट जब इंटरेस्ट के दिन की बात आएगी ना तो कंपनी उसको 2,20,000 पे नहीं देगी. सिंपल रीजन, 2 डिबेंचर्स तो वो बेच चुका है. तो स्टूडेंट्स कंपनी जैसा शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करती है, कोई डिबेंचर होल्डर का भी तो रजिस्टर होगा ना. तो डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में ना अभी ये 30,000 और 70,000 के सामने किसका नाम होगा? शिवम का नहीं होगा, जिसने शिवम से खरीदा. सो दैट पर्सन विल आस्क इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, तो हम वी आर नॉट कंसर्न विद दैट पर्सन. हम तो अकाउंट बना रहे हैं बुक्स ऑफ शिवम. ओके, सो शिवम ने टोटल खरीदा 2,20,000. इंटरेस्ट डेट से पहले उसने 2 डिबेंचर्स बेच दिया तो दोनों मैंने माइनस किया. सो 2,20,000 माइनस 30 माइनस 70. सो 2,20,000 माइनस 1 लाख इट कम्स टू 1,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स. हम लोग यहाँ पे हैं 31st मार्च का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? पीछे पलटेंगे तो स्टूडेंट्स 30th सितंबर. सो 30th सितंबर से 31st मार्च काउंट करो. नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 6. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. मार्च तक काउंट करना है बिकॉज ये 31st मार्च है. 30th सितंबर, 31st मार्च. सो 1,20,000 into 10% into 6 डिवाइड बाई 12. सो इट कम्स टू 6,000. सो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 31st मार्च 6,000. सो 31st मार्च को 2 ट्रांजैक्शन था, इंटरेस्ट और अकाउंट्स क्लोजिंग. तो स्टूडेंट्स पहले हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया बाय बैंक. कैसे किया? 2,20,000 उसके पास टोटल फेस वैल्यू डिबेंचर्स का जो उसके पास था.
बट मार्च से पहले 2 मरतबा उसने सेल ट्रांजैक्शन भी किया है, वो दोनों माइनस करो. सो 2,20,000 माइनस दिस 1,70,000 and 30,000, वी गेट 1,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ मंथ्स, वी गेट 6,000. अब 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करना है स्टूडेंट्स. सो वी आर क्लोजिंग द अकाउंट्स नाउ. अभी नीचे स्पेस थोड़ा कम है स्टूडेंट्स. मैं 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरी डाउन. क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टोटल करना है. तो पहला फेस वैल्यू का टोटल करेंगे. फेस वैल्यू का टोटल 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20, इट कम्स टू 2,20,000. सेम टोटल यहाँ लिखेंगे हम लोग, 2,20,000 सेम टोटल. देन बैलेंस फिगर फाइंड करते हैं. 2,20,000 माइनस 30 माइनस 70, 1,20,000. अकाउंट क्लोजिंग मीन्स इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट के बाद अकाउंट क्लोजिंग है. तो अकाउंट क्लोजिंग मतलब जस्ट टोटल करना है, बैलेंस फिगर फाइंड करना. सो 1,20,000 इज बैलेंस फिगर. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इंटरेस्ट. ठीक है, जब फेस वैल्यू लिखा है तो इंटरेस्ट भी लिखना पड़ेगा. सो वर्किंग नोट नंबर 11, अगेन इसका आंसर 0 है, मुझे पता है, बट आपके रेफरेंस के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ स्टूडेंट. सी व्हाई इट इज 0. वर्किंग नोट नंबर 11, इंटरेस्ट इज ऑन वापस 31 मार्च 17. इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस फिगर ये है ना 1,20,000. सो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द परसेंटेज, 10/100, 10%. नंबर ऑफ मंथ चाहिए, टाइमलाइन पे हो जाओ. वी आर क्लोजिंग अकाउंट. यहाँ पे हम लोग अकाउंट क्लोजिंग. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था स्टूडेंट्स, अभी सितंबर मत बोलना. देखो यहाँ पे रेड पेन से लिखा है, सेम डे आप एक बार इंटरेस्ट ले चुके हो. अकाउंट क्लोजिंग 31 मार्च को कर रहे हो और 31 मार्च का इंटरेस्ट डेट भी है, मतलब सेम डेट आपने एक बार इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ना, तो वापस से इंटरेस्ट थोड़ी आपको मिलेगा. दैट इज द रीजन 0/12. या देखो ये वर्किंग नोट नंबर 10, इंटरेस्ट इज ऑन 31 मार्च 17. इंटरेस्ट इज ऑन 31 मार्च 17, सेम डेट स्टूडेंट्स. एक बार आप कैलकुलेशन कर चुके हो तो वापस से आपको क्लोजिंग बैलेंस में नहीं मिलेगा. क्यों, नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करना है. यहाँ पे हो आप टाइमलाइन में, अकाउंट्स क्लोजिंग का ट्रांजैक्शन है. बैलेंस फिगर मींस अकाउंट क्लोजिंग. तो अकाउंट क्लोजिंग कर रहे हो तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, डोंट से सितंबर. रेड पेन से हम इंटरेस्ट का डेट ढूंढते हैं ना, तो अकाउंट क्लोजिंग के जस्ट बिसाइड्स दैट, उसी के पास में ही है ना इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन. दोनों सेम डेट पे था. इंटरेस्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब सेम डे पे अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो सेम डे पे दोबारा इंटरेस्ट थोड़ी ले सकते हैं स्टूडेंट्स. सो इसके लिए डैश निल, इसलिए मैंने 0/12 लिखा. आगे समझ में, ओके. नाउ दिस इज निल. अभी इंटरेस्ट का टोटल करते हैं. पहला ये टोटल करेंगे क्रेडिट साइड. 7,500 प्लस 1,750 प्लस 1,000 प्लस 6,000, it comes to 16,250. So same total here I will record 16,250. अभी बैलेंस फिगर फाइंड करते हैं. माइनस 1,250 माइनस 833, it comes to 14,167. 31st March 17 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस. अगेन ये बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग फिगर. लास्ट फाइनली कॉस्ट कॉलम में आ जाओ. पहले कॉस्ट कॉलम का डेबिट टोटल 120 प्लस 49,750 प्लस 48,500 प्लस 20,167. It comes to 238,417. सेम टोटल हम लोग यहां लिखेंगे 2,38,417. स्टूडेंट्स अगर मार्केट प्राइस दिया है तो वी हैव टू फॉलो दैट कंसेप्ट, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो जस्ट राइट बैलेंस फिगर. क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ कहा है. Prepare investment account, debentures account in books of Shivam. Last line. Market value of above investment on 31st March 17 was rupees 1,30,000. Clearly mentioned किया है students. So market price is given. Market price is 1,30,000. और cost price whichever is less. Cost price का simple meaning यहाँ का balance figure, last column का. So total हमें पता है 238,417. इसका balance figure find करना. -75250. माइनस 1138
minus 29,400 minus 3,337. So get 129,292. 129,292. Whichever is less, cost price or market price, whichever is less. देखो cost price कम है, ये 130 है, ये 129,292 है. So cost price is less. So we'll write 129,292. So students, मार्केट प्राइस दिया था 1,30,030. ये कॉस्ट प्राइस कैसे आया? यहाँ का बैलेंसिंग फिगर ये तो अभी लिखा मैंने 238,417 माइनस 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 माइनस. सो वी गेट दिस 129,292. दोनों को कंपेयर करो, जो भी लेस होगा सो लेस इज दिस. सो वी रिकॉर्डेड कॉस्ट प्राइस. फिर चाहे तो आप टोटल करके मैच करके देख लो, मैच हो जाएगा. अभी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा. जब आप मार्केट प्राइस लिखते हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स को नोट करना, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता है एंड वी राइट बाय P&L लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. बट हमने अभी मार्केट प्राइस नहीं लिखा है, विच एवरेज लेस किया तो कॉस्ट प्राइस ना, तो मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा. और ये कॉलम का नाम भी कॉस्ट कॉलम है, तो कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट आया तो बैलेंसिंग फिगर कभी नहीं होगा. ओके, टोटल चाहे तो आप मैच करके देख सकते हो, इट विल बी सेम. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. देखो 31 मार्च को अकाउंट क्लोजिंग और इंटरेस्ट डेट, सेम वे 1 अप्रैल और इमीडिएट प्रीवियस डे को इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन था. यहाँ पे भी 1 अक्टूबर को परचेज था, इमीडिएट प्रीवियस डे इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन था. तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नील आया था हमको, इसका भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नील आया. बिकॉज ऑफ द सेम रीजन अकाउंट क्लोजिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी नील आया. इमीडिएट प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे, एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करते, एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करते. ये तो सेम डे था, नेक्स्ट डे भी नहीं था. 31 मार्च 17 को पहला इंटरेस्ट ले लिया मैंने बाय बैंक. अब 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज भी कर रहा हूं तो वापस से इंटरेस्ट कैसे लूंगा? अभी तो लिया मैंने एक बार स्टूडेंट्स, तो वापस नहीं आएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में, ध्यान रखना स्टूडेंट्स. Cost price or market price, whichever is less. Now we are starting with question number 4, students. Okay, we'll do number. We'll do number 5, students. Number 5. Following transaction appears in the books of Mr. Joshi for 12% government bonds. Books of Mr. Joshi clearly mention किया है उन्होंने. So at the top first we'll write books of Mr. Joshi. Following transaction appear in the books of Mr. Joshi for 12% government bonds. So we'll write 12% government bonds account. So name of investor is Joshi. At the top I have recorded books of Mr. Joshi. 12% government bonds account. Now students, ये account बना लेते हैं हम लोग. फिर 6 columns on debit side, 6 columns on credit side, and then उसके बाद हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो वी स्टार्ट विद द टाइमलाइन. सारे ट्रांजैक्शंस वो टाइमलाइन पे अरेंज करेंगे, डेट के सीक्वेंस में, मंथ के सीक्वेंस में. सो वी स्टार्ट विद द बिगिनिंग. Following transaction appears in the books of Mr. Joshi for 12% government bonds of 100 each. Interest is payable half yearly on 30th September and 31st March every year. 1st April 2015, 2,400 is the number of bonds. Opening balance, clearly they've said it is opening balance. 1st April 2014. 1st April 15, sorry. 1st April 15 is opening balance. उसके बाद मई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया है. 1st June, number of bonds 900, sold. It's a sale transaction. 1st June. 1st June 15, sold, sale transaction. Then students, जुलाई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. अगस्त नो ट्रांजैक्शन. सितंबर 1st September परचेज.
1st September they have said purchase. 1st September 15 purchase. Students, second line देखो क्वेश्चन का. Interest is payable half yearly on 30th September and 31st March. Half yearly on 30th September, 31st March. So September के महीने में एक और ट्रांजैक्शन है 30th September 15. It's a interest transaction. Then students, सितंबर हो गया. अक्टूबर में नो ट्रांजैक्शन, नवंबर नो ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट पेज पे दिसंबर में दिया ना 1st December अगेन परचेज. क्लियरली दे हैव स्पेसिफाइड December, 1st December purchased. 1st December 15, it's a purchase transaction. Jan no transaction. 1st Feb 16. 1st Feb 16. Debentures 2700 debentures sold, so it's a sale. So sorry, मुझे green pen से मैं लिखता हूँ sale transaction. 1st Feb 16, it's a sale transaction. Okay. Then Feb के बाद लास्ट महीना मार्च होता है. लास्ट में लिखा प्रिपेयर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जोशी फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कब करना है हमको? 31st मार्च. सो 31st मार्च 16 इज अकाउंट्स क्लोजिंग डेट. स्टूडेंट्स अगेन अगर आपको याद हो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था ना उसमें ओपनिंग बैलेंस के साथ में इंटरेस्ट डेट भी था. ओके अब जब ओपनिंग बैलेंस के साथ में इंटरेस्ट डेट नहीं है तो क्या करने का? लाइन एक्सटेंड करने का लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा डॉट 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 करके डैश 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 और डिसाइड करने का अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था. सेकेंड लाइन देखो क्वेश्चन का स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March. ये अप्रैल है ना. अप्रैल से पहले कौन सा महीना होता है स्टूडेंट्स? मार्च होता है. क्या मार्च इंटरेस्ट डेट है? यस. व्हाट दे हैव सेड? इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th September एंड 31st March. सो अप्रैल से पहले हम पीछे जाते हैं ना तो अप्रैल से पहले मार्च है और मार्च इज द इंटरेस्ट डेट. 31st March उन्होंने कहा है. सो 31st March 15 को लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने दिया था. किसको दिया था? जोशी को. या गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना तो गवर्नमेंट ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था? 31st March 15 को मिस्टर जोशी को. So now we start with posting the transaction. 1st April 2015, it's an opening balance. 1st April 15 opening balance. So यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 1st April 15. To balance brought down. नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिया है स्टूडेंट्स, वैल्यू नहीं दिया. नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2400. एक बॉन्ड का वैल्यू 100 है. सो 2400 into 100 विल बी 2,40,000. एक बॉन्ड का वैल्यू 100 है ना. फर्स्ट लाइन में लिखा है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है, कंपल्सरी है स्टूडेंट. सो एक्चुअली आंसर 0 आएगा. सो वी शुड नॉट रिकॉर्ड इट बट फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ. वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1. इंटरेस्ट इज ऑन 1st April 15. इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू विच इज 2,40,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. अभी नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए उसके लिए टाइम लाइन देखते हैं हम लोग. 1st April यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस उसका इंटरेस्ट चाहिए तो अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31st March. तो कोई 31st March है, ये 1st April है, मतलब ये इमीडिएट नेक्स्ट डे हुआ ना स्टूडेंट्स. ये इमीडिएट नेक्स्ट डे हुआ ना, एक महीना भी नहीं हुआ स्टूडेंट्स. मतलब यू कैन से 0 months. एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. तो 0/12 आप कुछ भी कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई बाय 0 कर लिया तो आंसर 0 ही होगा ना. ओके सो एक्चुअली अगर आपको पता है टाइमलाइन से आपको पता चल जाता है कि एक दिन का सिर्फ डिफरेंस है. सो डोंट मेक दिस वर्किंग नोट स्टूडेंट्स. डायरेक्ट डैश डाल दो, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में. बट स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ऐसा एडजस्टमेंट आया तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू 2,40,000. 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. So 12% I calculated. Okay. Then नंबर ऑफ मंथ्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? अप्रैल में है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मार्च. 31st March से 1st April तो एक ही दिन का फर्क है. 31st March 15, 1st April 15 तो 0 months. 0/12 सो आंसर 0 ही होगा. देन स्टूडेंट्स का कॉस्ट देख लेते हैं कितना दिया है. नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1st April 2015 2,400 bonds. Opening balance at a cost of 2,28,000.
सो कॉस्ट हमको दिया है 2,20,000 कुछ मेंशन नहीं किया ये एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट, सो वी एज्यूम इट टू बी एक्स इंटरेस्ट प्राइस. सो दिस इज द ट्रांजैक्शन विच वी रिकॉर्डेड. सो दिस इज डन. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अभी हम सेकेंड ट्रांजैक्शन. तो 1 अप्रैल 15 हो गया ओपनिंग बैलेंस. नाउ नेक्स्ट अभी आ गए सेल. 1 जून को सेल दिया है तो सेल क्रेडिट साइड पे होता है. तो 1 जून 15 बाय बैंक अकाउंट. डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट दे हैव सेड. 1 जून 2015 900 bonds are sold. So 900 into 100 कर लो. So it comes to 90,000. So face value मिल गया 90,000. Working note number 2. For every transaction calculation of interest is compulsory. Students मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ working note number 2. Interest is on 1st June 15. Interest is always calculated on face value, which is 90,000. Face value 90,000 into rate of interest 12%. So 12 upon 100. अभी number of months चाहिए ना. We are standing here. ये 1 जून वाला ना. 1 जून यहाँ है. लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने गवर्नमेंट ने कब प्रॉमिस किया था? मार्च. सो 31 मार्च से 1 जून. सो अप्रैल मई से 2 महीने होंगे. सो इंटू 2/12. 2 डिवाइड बाई 12. So 90,000 into 12% into 2 divided by 12. It comes to 1,800. So interest column 1,800. कैसे 2 आया ये? जून में हम लोग हैं, लास्ट इंटरेस्ट मार्च में मिला. तो अप्रैल और मई आता है सिर्फ बीच में. 1 जून है ना, तो जून काउंट नहीं होगा. 30th जून नहीं है, 1 जून है. सो अप्रैल मई. सो 2 months. सो वी गॉट 1,800. नाउ अमाउंट देखते हैं. सोल्ड 900 bonds at 105 कम इंटरेस्ट. स्टूडेंट जब भी कम इंटरेस्ट प्राइस होता है तो इट इज कंपल्सरी वी हैव टू फाइंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस. सो पहले हम कम इंटरेस्ट प्राइस लिखेंगे. कम इंटरेस्ट INT मैंने शॉर्ट में लिखा है प्राइस. वहां पे क्या बोला है? कम इंटरेस्ट प्राइस 105. 900 bonds उसको 105 से मल्टीप्लाई कर लो. सो 900 into 105 इट कम्स टू 94,500. उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लो. अभी फाइंड किया था स्टूडेंट्स 1,800 वर्किंग नोट नंबर 2 में. सो 1,800 इंटरेस्ट माइनस करेंगे. 94,500 माइनस 1,800 इट कम्स टू 92,700. सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस हमको मिल गया 92,700. सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज 92,700. एक्स इंटरेस्ट प्राइस. So 92,700 can be recorded here. ये सेल ट्रांजैक्शन. बट स्टूडेंट जब भी सेल ट्रांजैक्शन होता है तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस कंपल्सरी है. वी कांट इग्नोर दैट. सो यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 3. प्रॉफिट लॉस एज ऑन किस दिन हमने बेचा? 1 जून 15 को. सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एज ऑन 1 जून 15. एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस. स्टूडेंट्स हमें पता है, अभी फाइंड किया 92,700. अभी यहां पे लिखा 92,700. सो 92,700 माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस. ये हमें नहीं पता है, नॉट गिवन. फॉर दैट वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं FV फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट INVT सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू. डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट. अब इसको सॉल्व करते हैं. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड पता है? यस 90,000 अपॉन फेस वैल्यू का डेबिट साइड. देखो एक ही ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, टोटल करोगे तो एक ही ट्रांजैक्शन है 2,40,000 माइनस. अभी क्रेडिट साइड पे टोटल नहीं करते स्टूडेंट्स. हम लोग क्या करते हैं, जिसका P&L फाइंड कर रहे हैं, जिसका लॉस गेन फाइंड कर रहे हैं, वो सेल ट्रांजैक्शन को इग्नोर करो. दिस 90,000 इग्नोर. अबाउट दैट कोई अमाउंट है क्या? नहीं है, 0. सेम वे कॉस्ट कॉलम डेबिट टोटल करेंगे तो एक ही ट्रांजैक्शन है. सो टोटल 2,28,000 होगा. माइनस क्रेडिट मीन्स व्हाट? ये जो करंट सेल अभी हमने लिखा ना, इसका लॉस गेन फाइंड कर रहे हैं 92,700 का. अबाउट दैट उसको इग्नोर करो. अबाउट दैट कोई अमाउंट है क्या? नहीं, 0. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. अभी 90,000 डिवाइड बाय 2,40,000
into 2,28,000, it comes to 85,500. So हमने कॉस्ट प्राइस मिल गया 85,500. स्टूडेंट्स 92,700 सेलिंग प्राइस माइनस 85,500 कॉस्ट प्राइस, सो 7,200 का गेन हुआ. सेलिंग प्राइस ज्यादा है 92, ये 85 है, तो 7,200 गेन. ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड टू पीएनएल. पीएनएल क्रेडिट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट. सेम डेट जिस दिन हमने सेल किया 1 जून 15 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर 3, लॉस गेन हमेशा सिर्फ अमाउंट कॉलम में आता है, विच इज 7,200. सो 7,200. सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड कर लिया 1 जून वाला. जून के बाद डायरेक्टली 1 सितंबर में परचेज है. परचेज हमेशा हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो विल गो टू द डेबिट साइड. 1 सितंबर 15 टू बैंक एसेट इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, सो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे था 1 सितंबर 2,100 बॉन्ड्स. 2,100 इज द नंबर, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, सो इट विल बी 2,10,000. 2,10,000. हर ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट स्टूडेंट्स कंपलसरी है, वो तो इग्नोर नहीं कर सकते. सो वर्किंग नोट नंबर 4 स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो वर्किंग नोट 4. वर्किंग नोट नंबर 4 इंटरेस्ट INT एज ऑन. डेट है 1 सितंबर 15. वर्किंग नोट नंबर 4. इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, तो फेस वैल्यू हमें पता है 2,10,000. सो यहाँ पे मैंने लिखा 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, सो 12%. अभी मंथ्स फाइंड करना है. हम लोग यहाँ पे ये 1 सितंबर वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो 1 सितंबर से जब पीछे पलटेंगे व्हेन वी टर्न बैक, तो देखना लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, मार्च. सो 31 मार्च से 1 सितंबर काउंट करो, देखो आपको 5 मंथ्स आएगा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. सितंबर काउंट मत करना बिकॉज दिस इज 1 सितंबर नॉट 30th सितंबर. तो 5 मंथ्स, सो 5/12. 2,10,000 face value into 12% into 5 divided by 12. It comes to 10,500. 10,500. 2,10,000 into 12% into 5 divided by 12. 10,500. प्राइस पढ़ लो, एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट. 2,100 bonds purchased at 98 x interest. Clearly x interest का है, so 2,100 number of bonds है into 98 कर लो. 98 का है ना, yes, into ₹90. So 2,05,800. वो प्राइस ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है, हमारे लिए अच्छी बात है. कम इंटरेस्ट होगा तो वी हैव टू मेक इट एक्स इंटरेस्ट. अच्छा स्टूडेंट्स अभी क्या है ना, हाँ एक बार मैं आपको और बता देता हूँ. देयर आर 2 ways टू गेट द आंसर. ये 2,100 नंबर ऑफ बॉन्ड्स था, उसको मल्टीप्लाई बाय 98 किया, तो आंसर कितना है 2,05,800. मैंने फर्स्ट वीडियो में भी और सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था. सो दिस इज वन वे टू गेट द आंसर. नंबर ऑफ बॉन्ड्स को 98 रुपीज से 2,100 इंटू 98 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, तो वी गॉट दिस आंसर. देयर इज अनदर वे ऑल्सो टू गेट द सेम आंसर. फेस वैल्यू, नंबर की जगह फेस वैल्यू ले लो 2,10,000 और 98 का है ना ₹98 की जगह उसको परसेंट कर लो, सो इंटू 98%. So you will get the same answer. So number of bonds into ₹98, yeah, face value into 98%. Answer will be same. और ये price x interest है, so even purchase transaction is completed. ये first purchase 1 September done. Next 30th September interest. Interest investor के लिए income होता है. Income हमेशा credit side पे होता है. So 30th September 15 by bank account. वर्किंग नोट नंबर 5. और जब भी हम स्पेसिफिक इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो फेस वैल्यू अमाउंट कॉलम डैश, सिर्फ इंटरेस्ट पे ध्यान देना है. सो वर्किंग नोट नंबर 5 स्टूडेंट्स मैं यहां लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 5. वर्किंग नोट नंबर 5 इंटरेस्ट एज ऑन, डेट था
30th September 15। हम स्पेसिफिक इंटरेस्ट डेट की बात कर रहे हैं, जिस दिन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। सेम वे बॉन्ड्स में अगर बैलेंस है तो विल रिसीव इंटरेस्ट, बॉन्ड्स में बैलेंस नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाउ टू डिसाइड दैट? गो टू फेस वैल्यू। उसके पास ये दो बॉन्ड्स पड़े, दो फेस वैल्यू 2,40,000 प्लस 2,10,000, सो 240 प्लस 2,10,000 कम्स टू 4,50,000। बट नोटिस स्टूडेंट्स, आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सितंबर में कर रहे हो, 30 सितंबर, और जून में ये जोशी, मिस्टर जोशी एक बॉन्ड्स बेच चुका है 90,000 जिसका फेस वैल्यू था। ओके, सो क्या होगा, ये 4,50,000 उसके पास टोटल था, ओपनिंग बैलेंस और परचेज मिला के। उसमें से जो उसने बेच दिया, अभी वो उसका ओनर नहीं है ना, उसके पोजीशन में नहीं है, अब उसका मालिक 90,000 का कोई और है, मुझे पता नहीं है। आई एम कंसर्न विद बुक्स ऑफ मिस्टर जोशी। 4,50,000 उसमें से जो उसने बॉन्ड्स बेच दिया माइनस कर दो, सो इट कम्स टू 3,60,000। तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 3,60,000 पे मिलेगा। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। सो 3,60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। हाउ टू गेट द नंबर ऑफ मंथ्स? वी आर हियर 30th सितंबर। देखो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, रेड पेन से मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ, ये 31 मार्च। सो 31 मार्च से 30th सितंबर काउंट करो, 6 मंथ्स आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी काउंट होगा बिकॉज वो 30th सितंबर है। 31 मार्च से 30th सितंबर। ओके, सो 3,60,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, सो इट कम्स टू 21,600। Answer is 21,600. So here I will record 21,600. Okay students, so this was 30th September 2015. ये भी हो गया। सितंबर के बाद डायरेक्टली दिसंबर में ट्रांजैक्शन दिया है, 1 दिसंबर परचेज। सो 1 दिसंबर आ गए परचेज। परचेज हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 1 दिसंबर 15 टू बैंक अकाउंट, asset account debit to bank, investment account debit to bank, per 1,200 bonds है, so 1,200 multiply by 100 it comes to 1,20,000। so यहाँ पे हम फेस वैल्यू लिखेंगे 1,20,000। for every transaction interest calculation compulsory, so working note number 6। स्टूडेंट्स शॉर्ट में मैंने वो पॉइंट सब पहले लिखा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। ओके, सो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्ड इंटरेस्ट। मतलब क्या है, अगर फेस वैल्यू लिखा है तो उसका इंटरेस्ट भी लिखो। बट देखो यहाँ हमने नहीं लिखा था, क्यों? बिकॉज आंसर वर्किंग नोट नंबर 1 में वो 0 आ रहा था, इसके लिए नहीं लिखा हमने। यहाँ फेस वैल्यू है तो इंटरेस्ट है, यहाँ फेस वैल्यू तो इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, कैलकुलेशन करना, 0 आएगा तो नहीं लिखेंगे, बट वी हैव टू मेक कैलकुलेशन। सो वर्किंग नोट नंबर 6 आई एम रिकॉर्डिंग हियर। वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरेस्ट इज ऑन। कभी परचेज कर रहा है वो 1 दिसंबर 15 को। इंटरेस्ट हमेशा स्टूडेंट्स फेस वैल्यू पे होता है, तो फेस वैल्यू कितना है इसका? 1,20,000। 1,200 बॉन्ड्स थे ना, सो 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स? 12%। अभी नंबर ऑफ मंथ चाहिए, वी आर स्टैंडिंग हियर 1 दिसंबर। ये टाइमलाइन पे देखो 1 दिसंबर 2015। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? जब हम पीछे पलट के देखेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट हमको कब मिला था? सितंबर में। सो 30th सितंबर से 1 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीना आएगा सिर्फ। 1 दिसंबर है ना, 31 नहीं है, सो सिर्फ 2 मंथ्स। 30th सितंबर से 1 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 मंथ्स, सो 2 by 12। So we'll make the calculation 1,20,000 into 12% into 2 divided by 12, it comes to 2,400। so यहाँ लिखेंगे 2,400। प्राइस देखो 1 दिसंबर 1,200 bonds purchase at 108 each, कम इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स क्लियरली मेंशन किया उन्होंने कम इंटरेस्ट। तो जब भी कम इंटरेस्ट प्राइस होगा तो वी हैव टू मेक इट एक्स इंटरेस्ट। सो मैं यही वर्किंग नोट नंबर 6 में लिख रहा हूं, कम इंटरेस्ट प्राइस they have said 108। so क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो? 1,200 मल्टीप्लाई बाय 108 रुपीज। अनदर वे टू गेट द आंसर मैं आपको बता दूं, और ऐसा भी कर सकते हैं। 1,20,000 फेस वैल्यू था इसका, ये 1,20,000। ओके, इनटू 108%, तो भी आंसर आपको दोनों तरीके से सेम होगा। तो कम इंटरेस्ट प्राइस के लिए दोनों में से एक मेथड फॉलो करना, मैंने आपको लिख के दोनों बता दिया। 1,200 इंटू 108 इज 1,29,600
ऐसे कर लो 1,20,000 इंटू 108% तो भी आंसर सेम होगा. तो कम इंटरेस्ट प्राइस लेस माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट तो अभी फाइंड किया ना हमने स्टूडेंट्स, ये वर्किंग नोट नंबर 6 में आंसर 2,400 आया था. सो विल सब्ट्रैक्ट 2,400. So 129,600 minus 2,400. 127,200 is X interest price. X interest price. 127,200. X interest price हम लोग यहाँ लिख लेंगे 127,200. तो जब भी कम इंटरेस्ट प्राइस होता है इट इज कंपल्सरी वी हैव टू फाइंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस. तो स्टूडेंट्स ये परचेज भी हो गया. 1 December 2015 परचेज. देन स्टूडेंट्स दिसंबर के बाद फेब में डायरेक्टली ट्रांजैक्शन है सेल. 1 Feb 2016 सेल क्रेडिट साइड पे होता है. तो 1 Feb 2016 बाय बैंक अकाउंट. डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखो. 1 Feb 16 2,700 बॉन्ड्स. 2,700 सो 2,700 into 100 so 2,70,000. यहाँ लिखेंगे 2,70,000. For every transaction calculation of interest is compulsory. face value है तो interest भी होगा. working note number 7 यहाँ तक 6 हो गया, अभी 7. so here I am drawing that working note number 7. interest is on 1 Feb 16. इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है. फेस वैल्यू पता है? यस 2,70,000 इज फेस वैल्यू. 2,70,000 फेस वैल्यू. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% सो 12 अपॉन 100. नंबर ऑफ मंथ्स हम लोग अभी यहाँ है ना स्टूडेंट्स 1 Feb. तो फेब से पीछे पलट के देखना है लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था. 1 Feb से पीछे पलटेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट सितंबर में मिला था. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन. सो 4 मंथ्स होता है. फेब काउंट मत करना. सो 4/12. वाई फेब को इग्नोर किया? बिकॉज दिस इज 1 Feb. 28 Feb नहीं है, 1 Feb है. ओके फेब का स्टार्टिंग है. सो 30 सितंबर से 1 Feb 4 महीने होते हैं. 4/12. सो 2,70,000 इंटू 12% into 4/12 it comes to 10,800. so here we'll record 10,800. so ये भी हो गया. प्राइस पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. 1 Feb 16 2,700 debentures sold at ₹97 x interest. so 2,700 debentures bonds sold, sorry it is bonds, into 97. so into 97 कर लेंगे 2,61,900. another way to get the answer अभी मैंने कैसा किया 2,700 number of bonds into 97. so we got 2,61,900 x interest price. मैंने number of bonds के बेसिस पे किया. फेस वैल्यू के बेसिस पे करना है तो 2,70,000 एट द रेट ऑफ ₹97 का है ना, वो 97 को रुपीज की जगह परसेंटेज बना लो into 97%. So same answer होगा स्टूडेंट्स 261,900. 2,70,000 into 97%. So we get 2,61,900. Okay. जब भी सेल होता है तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस इज कंपल्सरी. सो वर्किंग नोट नंबर 8. इंटरेस्ट इज ऑन स्टूडेंट्स. हाँ सॉरी ये पेज अभी मत देखना स्टूडेंट. दिस इज एक्चुअली फॉर, अच्छा मैं ऐसा पेपर, दिस इज एक्चुअली फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन ना, ये जो वर्किंग था इससे पहले वाला जो हम सॉल्व किया था. अभी वी आर सॉल्विंग दिस वन. इंटरेस्ट इज ऑन 1 Feb 2016. Sorry it is not interest. I'm sorry. Working note number 8. Profit or loss is on. Interest हम कर चुके हैं. Profit loss is on 1 Feb 16. हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है ना. So profit loss is on 1 Feb 16. What is the formula? X interest selling price minus X interest cost price. स्टूडेंट सेलिंग प्राइस हमें पता है, अभी लिखा हमने 2,61,900. यह हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है. या कभी कभी कम इंटरेस्ट देता है तो भी मेक इट एक्स इंटरेस्ट, वो तो मिल जाता है. कॉस्ट प्राइस कभी नहीं देगा. फॉर दैट वी फॉलो दैट फॉर्मूला. वो फॉर्मूला मैं एक बार देखो यहाँ लिख चुका हूँ. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू इनटू कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट था. ओके यहाँ भी डेबिट माइनस क्रेडिट था. ओके सो सेम फॉर्मूला आई एम अप्लाइंग. फॉर्मूला वापस नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये इन्वेस्टमेंट बेचा है उसका फेस वैल्यू 2,70,000 है. सो न्यूमरेटर में 2,70,000
अपॉन टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। टोटल फेस वैल्यू का मतलब डेबिट टोटल करो, 240 प्लस 210 प्लस 120, 240 प्लस 210 प्लस 120, इट कम्स टू 5,70,000। सो टोटल हो गया 5,70,000। 240 प्लस 210 प्लस 120, ओके। देन माइनस क्रेडिट मीन्स व्हाट, जो अभी करंट सेल हमने लिखा ना, जिसका पीएनएल लॉस गेन फाइंड कर रहे हैं, उसको इग्नोर करो, ये 270 को इग्नोर करो। अबाउ दैट, प्रायर टू दैट कोई अमाउंट है? यस, एक अमाउंट है 90,000। तो स्टूडेंट्स ये 90,000 हम माइनस करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। सेम वे कॉस्ट कॉलम में आ जाओ, पहला डेबिट टोटल करने का 2,28,000 प्लस 7,200 प्लस 205,800 प्लस 127,200, सो टोटल विल बी 5,68,200। ये हो गया आपका डेबिट टोटल कॉस्ट कॉलम का 5,68,200 माइनस। अभी क्रेडिट साइड पे आ जाओ, कॉस्ट कॉलम, अमाउंट कॉलम, क्रेडिट साइड कॉस्ट कॉलम। जो अभी हमने सेल लिखा ना स्टूडेंट्स, उसको इग्नोर करो, इसी का तो लॉस गेन फाइंड कर रहे हैं, इसको इग्नोर करो। अबाउ दैट कोई अमाउंट है? यस, एक अमाउंट है 92,700, तो 92,700 हम माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2,70,000 अपॉन 570 माइनस 90, 5,70,000 माइनस 90,000, इट कम्स टू 4,80,000 इंटू 5,68,200, पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस 92,700, 4,75,500, 568,200 minus 92,700. Okay, 574. Now 2,70,000 divide by 4,80,000 into 47,500. It comes to 267,469 होगा, 468.75, 267,469। सो अब माइनस करेंगे, 2,61,900 माइनस 267,469, इट कम्स टू 5,569। और स्टूडेंट्स ये लॉस है, दिस इज लॉस। ऑल लॉसेस आर डेबिटेड टू पीएनएल। पीएनएल डेबिट होगा, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम डेट जिस दिन आप सेल कर रहे हो, 1 Feb, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर इट इज 8, और लॉस गेन हमेशा लास्ट कॉलम में आता है, 5,569। तो स्टूडेंट्स हमने ये सेल ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट कर लिया 1 Feb। Students, 31st March is also an accounts closing. 31st March is the interest date. So working note number 9, interest is on 31st March 16। इंटरेस्ट हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट डेट पे ये टोटल करेंगे हम लोग, तो हमको आएगा ये 5,70,000 माइनस 2 डिबेंचर्स वो बेच चुका है, 2 बॉन्ड्स वो बेच चुका है, सो इग्नोर दैट। सो 5,70,000 माइनस 2,70,000 माइनस 90,000, so it comes to 2,10,000. Rate of interest 12%. Number of months students 6 होगा, 6/12। 31st मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट इंटरेस्ट हमको मिला था सितंबर में, सो 31st मार्च 30 सितंबर यू विल गेट द आंसर 12,600। फिर स्टूडेंट 31st मार्च को हम लोग अकाउंट्स क्लोज करेंगे, वी स्टार्ट क्लोजिंग द अकाउंट्स। When we close the account, what happens students? First ये टोटल करेंगे हम लोग, सेम टोटल यहाँ पे लिखा तो बैलेंस में फिगर आएगा 2,10,000। उसका इंटरेस्ट फाइंड करना चाहिए? नहीं स्टूडेंट्स, सिंपल रीजन, कब क्लोज कर रहे हैं आप? 31st मार्च को। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था स्टूडेंट्स? नोटिस 31st मार्च को इंटरेस्ट, सो 31st मार्च सेम डे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं रिकॉर्ड कर सकते, सो आई रिकॉर्डेड निल। फिर ये सेम टोटल करेंगे, वी गेट दिस टोटल, सेम टोटल यहाँ पे लिखा, विल फाइंड द बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे 46,800
minus 10,500 minus 2,400. It comes to 33,900. Balance figure is 33,900. Then finally students, cost price, अगर फिर ये टोटल किया मैंने, same total I recorded here. अगर cost price if market price is not given, write balance figure. But students उन्होंने cost price हमको market price दिया है, market price is given in the end 2,03,456 और cost price मतलब balance figure find करो students. 5,68,200 minus 92,700 minus 261,900 minus 5,569. So it is 208031. Whichever is less. So ये less है, मैंने यहाँ पे लिखा. अब ये कॉलम टैली नहीं हो रहा है, तो we get a balance figure 4575. That's all students.